Hello students, how are you? Very good evening all of you. I hope all are fine. Today we will going to study about some topics. You can see here exothermic reactions, endothermic reactions and precipitation reactions. Yesterday already told that many types of the reactions like combination reactions, decomposition reactions and displacement reactions and double displacement reaction. Already explained it with the chemical reactions example. Okay, I advise you, all of your student, you go and check back the video and revise everything about the types of the chemical reactions. Okay, still you not subscribe my channel, you can subscribe right now and like press the like button. Okay, I requesting you. Okay students, so then come start the today topics. Okay, what is the exothermic reactions and endothermic reactions, precipitation reactions, everything we will study about. Okay, don't worry. Let's start the first reactions, exothermic reactions. What is the exothermic reactions? Okay, already I write down the definition about the exothermic reactions. You can see here, those chemical reactions in which heat is involved along with the formation of product is called the exothermic reaction. That means what? Listen me carefully. Okay, when any reaction will be done which time along with the product heat will be released, then you can say this is the exothermic reactions. ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं हिंदी में रिवाइज कर देता हूं ताकि सभी लोग समझ लें. देखिए, जब कभी कोई रिएक्शन हो रहा हो, कहीं भी जब कोई रिएक्शन होता है उस तो क्या होता है, रिएक्शन होने पे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ कुछ जो है हीट निकलता है, उस समय हम लोग बोलते हैं वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा है. आई होप ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट. जब कहीं भी रिएक्शंस हो रहा हो और उस समय जब प्रोडक्ट बनता है तो उस समय जो हीट भी रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, उसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है बताया था एक बार, और भी यहाँ पे मैं बता दूंगा. ओके, तो जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट वन एग्जांपल. यू कैन सी हियर. If you want, you can write down this definition. It is benefit for you. Firstly, write down one example. Okay, you can see this is the. I am taking one example. Firstly, I will give you two or three examples. Don't worry. You can take calcium oxide. This is the calcium oxide. Okay, and this is the water, H2O. When both are combined each other, or you can say both are react each other, after that it will be make calcium hydroxide and heat release. ओके, देखिए, जब एक कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम भी बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं. ये क्या है दोस्तों, ये आपका वाटर है. ये क्या है, वाटर है. ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम और वाटर जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. स्लैकेट लाइम इसको बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे. इस पूरे रिएक्शन को मैं समझाऊंगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या स्लैकेट लाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैकेट लाइम बोलते हैं. ओके, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसी समय यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है साथ साथ. तो जहां भी ऐसा हो कि दो चीजें, दो सब्सटेंस या रिएक्शन करते हैं और एक सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस के साथ हीट भी रिलीज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है. लिसन मी अगेन. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ. When we take calcium oxide and water, then both are react and
formation of the one product calcium oxide along with release the heat is called the exothermic reactions। यानी जब दो चीजें रिएक्टर के एक प्रोडक्ट जो बनाती हैं उसके साथ हीट भी रिलीज करती हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आई थिंक ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। यू हैव द एनी डाउट प्लीज पुट इन बॉक्स, दैट मीन्स कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कमेंट इट, ओके, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे, मैंने कल बोला था ये जो LHS का पार्ट है, इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और RHS का जो पार्ट है ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज किया था कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन आर यू कैन से रिएक्ट, बोथ आर रिएक्ट ईच अदर, इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड product is formation calcium hydroxide along with the heat, okay, this is called the exothermic reactions। ऐसा करते हैं आप लोग, ये जो है exothermic reactions का ये जो एग्जांपल मेरा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया, आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर में एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। यदि आप लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता था, मैं भी कल भी मैंने ये रिएक्शंस आपको बताए थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे हीट रिलीज होता है इसके साथ साथ। देखिए यहाँ पे आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये रिएक्शंस लिखा हुआ मिलेगा। इसमें क्या होता है, जब ये मैग्नीशियम एक रिबन की तरह लेते हैं, पतला जो है रिबन जो लेडीज लोग लगाती हैं बालों के अंदर बांधने के लिए, वैसा पतला रिबन का एक मैग्नीशियम लेंगे और उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, कोई बर्नर ले लेंगे या गैस का चूल्हा ले लेंगे, उसके संपर्क में उसको लेकर के जाएंगे मैग्नीशियम को, और जब ही लेकर जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलेगा और वो क्या बनाएगा, जो उसका राख बनता है जलने के बाद, उसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। वहां पे हीट भी रिलीज होगा, सिंपल सी बात है, जब जलेगा तो हीट रिलीज होगा। ठीक है, यह बोलते हैं कि डेजलिंग फ्लेम के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड उस समय जलता है, बिल्कुल सफेद व्हाइट की तरह जलता है। ओके, तो ये एक हो गया, सेकेंड मैंने बता दिया आपको, और इसका थोड़ा सा इसके बारे में भी मैंने बता दिए। ये 2 चीजें हो गई। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ, एक एग्जाम्पल आते हैं इसके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी जब हम लोग नेचुरल गैस को जलाते हैं तब क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के रूप में मैंने ले लिया आपका मेथेन को। मेथेन को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, when methane and oxygen will be burned, then what will be happen? ओके, जब मीथेन और ऑक्सीजन जलेगा दोस्तों तो यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ ही आपका H2O यानी वाटर रिलीज करेगा, और यहाँ पे हीट जो है हीट भी रिलीज करेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए 4H है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2S2 कर सकते हैं, 2 यहाँ पे लगा लेंगे तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए जब मेथेन और ऑक्सीजन रिएक्शंस कर रहे हैं आपस में, ये जो दोनों रिएक्टेंट है आपस में रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कि बोल सकते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल हो गया। आइए एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जब देखिए यहाँ पे एक 4th नंबर का एग्जांपल है C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है, ये ग्लूकोज है। जब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को ये भी ध्यान में रखा कीजिए, ये क्या है, रिएक्टेंट है ना, जो रिएक्शंस करने वाला होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। आफ्टर दैट गोज टू मेक व्हाट, क्या बनाएगा ये, यहाँ पे ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखिए क्या बनाता है, एक तो आपका CO2 बनाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बनाएगा,
H2O रिलीज करता है और साथ साथ में एनर्जी भी ये रिलीज करता है ये रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी बोलिए या हीट बोलिए, तो यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लगा दीजिएगा और यहाँ पे भी आप 6 लगा लेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, साथ में एनर्जी यानी हीट रिलीज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये हो रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप चाहे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना जो है काफी है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग नेक्स्ट डे भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, इतना सारे नहीं तो कम से कम 1-2 तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सेकेंड नंबर का डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक हो गया, सेकेंड नंबर इज द व्हाट, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शंस? अब यहां पर देखिए एक बार, जब स्टूडेंट्स कोई रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई रिएक्शंस होने वाला होता है तो उस रिएक्शंस को होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, तभी वह रिएक्शंस होगा। यानी कोई रिएक्शंस हो रहा है उसमें हीट की आवश्यकता पड़ रही है तो हम लोग बोलेंगे वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, और उसके बाद ही वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है। जब रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट में कुछ हीट भी डालते हैं तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। बिल्कुल यह जो है एक्सोथर्मिक का अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक जो प्रोडक्ट बना रहे थे तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रहा था, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल रहे थे। और इंडोथर्मिक जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले जो रिएक्टेंट होता है उसमें हीट की भी जरूरत पड़ती है, रिएक्टेंट के साथ हीट भी दिया जाता है यानी एनर्जी भी दिया जाता है, तब जाकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आप चाहें तो आपको करंट लाइफ से इसको जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बनाते हैं, चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो राइस बनाने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं, चावल डालते हैं और नीचे से आपका हीट देते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए आपका राइस और वाटर क्या हो गया, ये 2 रिएक्टेंट हो गया, 2 सब्सटेंस हो गया, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और इस रिएक्टेंट में हम लोग उधर से जो है गैस का चूल्हा जला करके उसमें हीट भी दे रहे हैं, तो दोनों के साथ हीट भी जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जा करके चावल पकता है तो बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ये क्या है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चावल बनाते समय वाटर और चावल के साथ हीट भी उसके अंदर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। एक करंट लाइफ से आप रिलेट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन एक बार आइए हम लोग लिख लेते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस, सेम डेफिनेशन है, दोज chemical reactions absorbed heat, those chemical reaction absorbed heat during chemical reactions is called endothermic reactions. Okay, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप चाहे तो अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मैं यहाँ पे आपके सामने मैं जो है डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल,
फर्स्ट एग्जाम्पल इज द व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट देखिए यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा, फिलहाल एग्जांपल देखें। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम या स्टोन भी बोलते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसके बारे में मैं समझा चुका हूं आपको। कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस वाले इधर वाले पार्ट को ये क्या है, LHS है। मैं सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। LHS हो, LHS को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये जो RHS है, या राइट हैंड साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है ना। तो देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट था, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, इसमें हीट डालते हैं इसके अंदर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तब मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसमें हीट जो यहाँ पे हीट लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी हीट लिख सकते हैं, प्लस हीट करके भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट प्रोवाइड किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है इसमें। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुआ इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आई थिंक ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये आप लोग समझ गए होंगे। एक और दो एग्जांपल देखते हैं। जितने भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस लिखवाए थे, वो सारे जो है इसके अंदर आएंगे। ठीक है ना, सारे जो है इसके अंदर आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा माइक में ठीक कर लो अपना, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए FeSO4, इसमें जब आप हीट देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 SO2 प्लस SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आपका फेरस सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो ये जो इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। थर्ड एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में लिख लीजिए आपका AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में यानी जो सूर्य का लाइट होता है उसी वो जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, आपका 2Hg सिल्वर और Br2 ब्रोमीन के रूप में, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। यदि फोर्थ आप लेंगे, इसको हम लोग ये सारे जो है हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल लिख रहे हैं। यदि सिल्वर आप क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपका सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एक क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन बना लेगा। ये सारे जो है आपके इंडोथर्मिक के क्या है, ये सारे जो है इंडोथर्मिक के मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, आशा कर रहे हैं आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कल लिखवाया था, ए आपका हो गया, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। फिलहाल इतना काफी है, तो आप लोग समझे होंगे। एक बार और देखिए, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट बाहर होता है, आउट होता है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका रिएक्शंस क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, थर्ड था आपका प्रेसिपिटेशन
रिएक्शंस। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है दोस्तों? दो सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, मतलब कि इनसॉल्युबल, जो सब्सटेंस आपका वाटर के अंदर जो है घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस उसको हम लोग बोलते हैं। आप काफी अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, फिलहाल इतना कंसेप्ट के रूप में जानिए तो काफी है। चाहे चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन आपके सामने डेफिनेशन जो है लिख ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन, पेज पे लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना समझ गए होंगे, फिलहाल मैं और समझा दूंगा आपको। और लिखिए प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन is type of chemical reactions, type of chemical reaction in which two soluble salt in aqueous solution combine and one the product is an insoluble। आप चाहे तो ऐसे भी डेफिनेशन को अच्छे से आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, या आप बिना डेफिनेशन के भी आप वो चलेगा। बस इतना, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होने में दिक्कत होगा, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, साइंस के अंदर ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। देखिए मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, वो जो है लिखी बुक का डेफिनेशन था, मेरा समझिए। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई दो चीजें रिएक्शंस करता है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, वाटर में घुल सकता है, लेकिन रिएक्शंस करने के बाद उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वाटर में नहीं घुलता है, वाटर के अंदर जाकर के एक सॉलिड फॉर्म में जाकर के नीचे बैठ जाता है और वाटर में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है, पीपीटी करके उसको हम लोग शो करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे देखिए Na2SO4, ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। और इसी में हम लोग इसको एक और कोई भी ले लेंगे, बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, एक कल एग्जाम्पल में आपको समझाया था, सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज लगा रहा हूँ, यहाँ पे अब ये मैं समझाऊंगा क्या हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों एक क्यू जो लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है कि इस सोडियम सल्फेट के साथ पानी भी है, वाटर भी है, एक्वस का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। वो मैं समझाऊंगा बाद में, इसके आगे जी लगता है, एस लगता है, ए क्यू लग रहा है तो क्या हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं अभी कभी इसी रिएक्शन में लिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं समझाऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल यहाँ देखिए, इतना जानिए कि ए क्यू का मतलब है कि सोडियम सल्फेट के साथ पानी है, बेरियम क्लोराइड के साथ भी पानी है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद, ये दोनों जो है रिएक्शन करने के बाद देखिए क्या बनाते हैं, ए बना लेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यहाँ बनेगा NaCl, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेंगे 2 की इक्वेशन जो है आपका बाइलेंस हो जाए, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये आपका व्हाइट कलर का ये होता है, किस कलर का होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं। ये जो है देखिए, वो यहाँ पे दो जो है आपका सॉल्ट है, और ये दोनों सॉल्ट क्या है? वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ये दोनों सॉल्ट क्या है? वाटर के अंदर क्या है? ये दोनों सॉल्ट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जब ये रिएक्शंस कर लेता है, ये जो दोनों रिएक्टेंट, इधर जो रिएक्टेंट है रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्या है वाटर में? ये जो है इनसॉल्युबल है,
ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और ये NaCl है, ये नमक है, सॉल्ट है, तो पानी में घुलता है, ये जो पानी के अंदर जाकर नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का आप ले सकते हैं। किसका? लेड नाइट्रेट। ये भी मैं एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ। लेड नाइट्रेट जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करने के बाद बनाता है लेड ऑक्साइड, लेड आयोडाइड बनाता है। उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। देखिए ये क्या है? लेड नाइट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। और ये आपका क्या है? ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। क्या है? कलरलेस है, ठीक है। और ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ये जो बनाता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है। इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसी की वजह से हम लोग इस रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 2KNO3 निकल जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता है, ठोस के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे S लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो मैंने अभी आपको 2-3 बातें समझाई आपको। तो एक तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया। ओके, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब कोई रिएक्शंस होता है जहां से हीट रिलीज हो रहा हो, हीट निकलता हो, तो इसको एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में आपका हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एंडोथर्मिक। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या बताया? जब दो सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शंस करते हैं, दो या दो से अधिक सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शंस करते हैं, तो रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है और वो जो है सॉलिड फॉर्म में जो है पानी के अंदर या सॉल्वेंट जो भी होता है उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है। उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने दिए। तो 3 बातें आपको, 3 रिएक्शंस बताई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।